Welcome class 11. Today we will discuss about the layout of a business letter. Okay. So in there first you can see on your screen the heading has given. Let's start our video with the first content of the letter, that is the heading. Okay. In the heading has given meaning, contain the names, address, telephone number, fax number, email ID, website, scene of the company, etc. Okay, means it is the part of the business letter which introduce the sender to the receiver. Usually printed letterhead are used. For example, Tata Motors Limited, this is the name of the company. 7C SB Road, MIDC, this is the address of the company where it's given it is situated in the Pune. Now scene number has given, company identification number that is given here. Now telephone number, fax number, email address and website also has given. So this is all included in the heading of the company. Heading contain the name, address, telephone number, fax number, email ID of a company और एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ सेंडिंग द लेटर, जो लेटर सेंड कर रही है उसका ये सब डिटेल लिखा रहेगा ना. जनरली द नेम इज़ प्रिंटेड ऑन द टॉप सेंटर ऑफ द पेज एंड इट इज़ इन द बॉन्ड लेटर, ये सॉरी बोल्ड लेटर में रहेगा, ये मतलब कैपिटल लेटर में रहेगा. एंड द एड्रेस विच इज़ गिवन बिलो द नेम. एंड हेडिंग शुड बी डिज़ाइन इन द अट्रैक्टिव मैनर विथ द आर्टिस्टिक व्यू. जो भी हेडिंग रहेगी वो आर्टिस्टिक व्यू से रहेगी एंड इट क्रिएट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द रीडर और रिसीवर और द एड्रेसी, मतलब जो एड्रेसी है, जो रिसीवर है, उसके लिए मतलब फर्स्ट अट्रैक्शन होता है. बिकॉज कोई भी ओपन करता है लेटर तो सबसे पहले हेडिंग ही देखता है. इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर विच इंट्रोड्यूस द सेंडर टू द रिसीवर, जहाँ पे सेंडर का पता चलता है. ओके, नाउ next will come the date. Okay, this is a very important part of the letter, date. You can see on the screen the date has given on the right hand side of the letter. Date is printed on the typed on the right hand side of the letter just below the heading. Date जो होता है it is written on the right hand side of the letter just below the heading, and the date include date, month and year on which letter is typed. डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेट होता है, मंथ होता है एंड ईयर होता है. ओके, एंड द डेट इन रिटर्न इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग वे से लिखा जाता है. विदाउट द डेट लेटर आर इनकम्प्लीट. सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज लेटर एक्ट एज अ लीगल एविडेंस. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर डेट उसमें रहती है तो वो एज एक लीगल एविडेंस के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, अभी मैंने बता दिया आपको कि देयर हैज़ अ डिफरेंट वे टू राइट द डेट. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश स्टाइल से करें तो 1 अप्रैल 2019 जो हम यूज़ करते हैं, और अमेरिकन स्टाइल से अगर हम देखें तो अप्रैल 1 या फिर अप्रैल 1 लिख सकते हैं, और 2019 या फिर 2000 जो भी ईयर हो, 2020. ओके, वी कैन राइट. सो विदाउट, मैंने आपको बता दिया कि विदाउट द डेट लेटर इज सपोज टू बी इनकम्प्लीट. ओके, सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच एक्ट एज द लीगल एविडेंस. Now point number 3 will come the reference number. This will come on the left hand side of the letter just below the heading. Okay, the reference number is given to have quick reference to the matter concerned. The reference number is the number or word which is used by the letter writer. जो letter writer है वो उसको use करता है. Okay, उसके द्वारा यूज़ किया होता है. And every outgoing letter is given reference number. So it appears on the left hand side below the heading and the reference number is given. It helps the receiver or the addressee to have a quick reference to the matter concerned. क्या मैटर है उसके बारे में उसको रेफरेंस मिल जाता है. एंड द रेफरेंस नंबर इज़ द कोड नंबर. रेफरेंस नंबर क्या होता है, कोड नंबर होता है या फिर एक ऐसा वर्ड होता है विच इज़ यूज बाय द लेटर राइटर. फॉर एग्जाम्पल 91/P 2019. ओके, मतलब दिस इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द लेटर एंड पी मीन्स द परचेज डिपार्टमेंट ने किया है तो वो, और 2019 क्या होता है, ये ईयर हो जाता है. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4 हैज़ गिवन द इनसाइड एड्रेस. ओके, इनसाइड एड्रेस मतलब जो भी रिसीवर है उसका एड्रेस.
So in contain name, address of the receiver of the letter. It is written on the left hand side of the letter. For personal name, Mr. Sri, Mrs. or Srimati are used, and for firms, Mazar is used. For example, you can see it has given the Mrs. Pallavi Pathare, 18A Ganesh Complex, MG Road, Ratnagiri. This is the address of the Mrs. Pallavi Pathare, who is the receiver. Now, Mr. or Masters Jagannath Trading Company. Okay, sorry. MS has given the Mrs. Jagannath Trading Company. Company का नाम है Market Yard Sangli. This is also the address of the company has given here. Okay, so इस वे में हम रिसीवर का एड्रेस लिख सकते हैं. Now point number 5 will come subject. When you open the layout of the letters, so you can see the all content will be there. Now subject is there. It is written in the brief as SUB. Okay, brief में हम short में इसको क्या लिखते हैं, SUB लिखते हैं. It shows the purpose of the letter. Okay, ये लेटर्स का पर्पस दिखाता है. एंड द रीडर गेट द आइडिया ऑफ मैटर ऑफ द लेटर विदाउट रीडिंग द लेटर कम्प्लीटली. रीडर को आइडिया मिल जाता है बिना लेटर पूरा पढ़े, बाय रीडिंग जस्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ द लेटर. इट हैज़ टू सेंड इट टू द कंसर्न सेक्शन और डिपार्टमेंट एंड क्विक फाइलिंग इज़ पॉसिबल. इससे क्या होता है, मतलब जो कंसर्न सेक्शन है या डिपार्टमेंट है उसको तुरंत सेंड करने में ईजी हो जाता है, बिकॉज मैटर का पता चलता है. सो फॉर एग्जांपल हमें ऐसा लगेगा जैसे ओपनिंग अ करंट अकाउंट है, सप्लाई ऑफ फर्नीचर्स, ऑर्डर ऑन 1 February 2019, ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 6 हैज़ गिवन द सैल्यूटेशन. ओके, द सैल्यूटेशन इज़ द ग्रीटिंग फ्रॉम द राइटर टू द रीडर. सैल्यूटेशन एक तरह का ग्रीटिंग होता है, फिर हम वेलकम करते हैं, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, लाइक दैट. ओके, सो salutation इज अ ग्रीटिंग फ्रॉम द राइटर टू द रीडर, और एड्रेस ही जिसको हम लिख रहे हैं. ओके, एंड इट क्रिएट अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड. इट अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन बिलो द इनसाइड एड्रेस. ओके, सो एक तरह का फेवरेबल इम्प्रेशन क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में. और हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर किसी हम इंडिविजुअल को लिख रहे हैं, फॉर द इंडिविजुअल, सो वी कैन राइट अ डियर सर और डियर मैडम. इफ़ वी आर राइटिंग एन इंस्टीट्यूशंस, किसी इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हैं, सो ओनली वी कैन राइट सर. और अगर हम किसी VIP के लिए लिख रहे हैं, ओके, सो वी कैन राइट द रिस्पेक्टेड सर और मैडम. ओके, नाउ point number 7 has given the body of the letter. Okay, the body of letter, there has the 3 parts of the letter. It is the most important part of the business letter. It contains the actual message to receiver of the letter. The message is divided into 2 or 3 paragraph. Okay, ये 2 या 3 पैराग्राफ में डिवाइड होता है बॉडी ऑफ द लेटर. फर्स्ट पैराग्राफ कंटेन, it introduces the subjects or matter. It shows the be brief but effective, and it should create the interest in the reader to go through the letter. ये जो पार्ट होता है यहाँ पे एक इंटरेस्ट शो करता है इन द माइंड ऑफ द रीडर टू रीड द लेटर अहेड. नाउ सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर. ये मेन पार्ट होता है. सो इट कंटेन द मेन मैसेज of the letter and it is the heart of the letter. So there will become the simple language, clarity and correctness should be reflected in the message, and the brevity is the soul of the letter. Okay, तो यहाँ पे correctness, clarity, these all things will reflect here. Now paragraph number 3 क्या होता है, this is the closing paragraph. It is the conclusive paragraph. It should be written carefully so that the desired action be taken by the receiver of the letter. Desired action लिया जाता है receiver के through. Okay, now complimentary close. This is the concluding part of the letter. It is written below the body of the letter on the right hand side. Okay, it shows the polite end of the letter and it should match the salutation. और salutation से match भी करता है, like yours faithfully, yours sincerely. These are the closing words generally which is used. Okay, so this is the concluding part of the letter, मतलब concluding part होता है. Okay, it shows the polite. Now point number 9 has given the signature. This is the part of the letter. The authorized person sign below the complimentary clause. ये मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आपको कल ही बताया वीडियो में कि ये जो साइड सिग्नेचर होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर, बिकॉज दोज पर्सन आर राइटिंग, जो ऑथोराइज पर्सन लेटर सेंड करने के लिए, तो उसकी यहाँ पे सिग्नेचर होगी. सो
यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन होगा ही हैव टू साइन बिलो द कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड द विदाउट द सिग्नेचर लेटर्स सपोज टू बी इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड, लेटर को इनकम्प्लीट और इनवैलिड माना जाएगा. सो बिलो द सिग्नेचर द नेम ऑफ द पर्सन एंड इज हर और हर डेजिग्नेशन इज रिटन, कि मतलब वो पर्सन का नाम रहेगा जिसने साइन किया है, उसका डेजिग्नेशन का मतलब वो क्या है, उसकी पोस्ट क्या है कंपनी में. एंड रबर स्टैम्प सिग्नेचर विल बी शुड नॉट बी यूज. यहाँ पे जो रबर स्टैम्प सिग्नेचर होता है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. द पर्सन हु साइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर रिटन इन द लेटर. जो पर्सन साइन करेगा वो जो भी मैटर लेटर में लिखा हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. सो यू कैन सी यहाँ पे कुछ आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि साइन रहेगा, वहाँ पे पर्सन का सेम आएगा, देन उसका नीचे नेम आएगा, उसका डेजिग्नेशन मतलब वो उसकी क्या पोस्ट है कंपनी में या फिर फॉर्म में. नाउ एनक्लोजर, this is the second last point of the letter. It includes the document, checks, etc. which are attached with the letter. It is shown by the words encl, encl, and this is the written in the brief, and which is written on the left hand side. If the document more than one, it should be numbered and attached serially. तो इस तरह से आप देख सकते हो नीचे कैसा सीरियल वाइज से लिखा रहेगा अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो तो. एंड इट हेल्प द रिसीवर टू चेक द डॉक्यूमेंट. यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अटैच रहेंगे उसके बारे में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन रहेगी. सो इसके थ्रू रिसीवर को इजी होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकता है जो भी अटैच रहेंगे लेटर के साथ. ना फॉर एग्जांपल यू कैन सी दे हैज़ गिवन द एनकल मीन्स एनक्लोजर्स दिया हुआ है. फर्स्ट हैज़ गिवन द बॉडी कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर. ये सारी चीज़ें, दिस इज़ द ओनली एग्जाम्पल. इसके जगह पे कुछ और भी हो सकता है लाइक लिस्ट ऑफ बुक्स, सेकेंड अ बिल, दिस ऑल थिंग विल बी कम हियर. ओके, मतलब कुछ भी हो सकता है. Now point number 11 has given the carbon copy notation. If the copy of the letter is to be sent to the other person at the same time, so it is shown by the two alphabet CC and it is written below enclosure on the left hand side. अगर ये जो लेटर है इसकी कोई और कॉपी दूसरे पर्सन को भी दी गई है, so they will come by the two alphabet CC and it is written below the enclosure on the left hand side. enclosure के जस्ट नीचे आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. CC लाइक वाइस चांसलर, अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती, द डॉक्टर्स, हायर एजुकेशंस, पुणे. ओके, इस तरह से सारे डिस्क्रिप्शंस रहेंगे. सो दिस इज़ ऑल about the layout of the business letter. Today we have seen total the content of the letter. Okay, in the next video we will see the essentials of the good business letter. आज के लिए इतना ही. Goodbye, thank you.